Hello students, in today's session we are going to cover chapter number 2, not for profit concern. Two point 3.1 meaning of income and expenditure account, features of income and expenditure account, and specimen of income and expenditure account. As we know that in this chapter we have to prepare, means our solution will be based on this income and expenditure account and balance sheet, and our question will be receipt and payment account. On the basis of receipt and payment account and adjustment, we have to prepare income and expenditure account and balance sheet by considering the adjustment. So let us begin. Government textbook page number 69, we have meaning of income and expenditure account. In simple word, income and expenditure account is a nominal account. Income and expenditure account is a summary of the revenue, income and revenue expenses of a particular period. So it is belong to only revenue expenses. Income for the current year means what we are receiving: subscriptions, interest received, sundry receipt, general receipt. So income and expenditure is nothing but what? It is a collection of revenue expenses and revenue income. In brief, what is income and expenditure account? During the current year, what we receive and what we spend on a particular head, that we have to record. As far as the sources of income, the receipt is concerned, we have a subscription, we have rent received, we have commission received, we have miscellaneous received. So these are the receipt for the current year. Nature should be very clear: revenue, reoccurring in nature. So whatever we are receiving, that will be recorded on the income side. And expenses, we have salaries, we have wages, we have light bill, we have telephone bill, etc. So all this revenue, income and expenditure will be recorded in the income and expenditure account. It is a nominal account. कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल का हम रूल जानते हैं. क्या होता है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो जो भी एक्सपेंसेस होगा, ये एक्सपेंसेस है, सैलरी है, वेजेस है, जितने भी नेचर्स के अलग अलग एक्सपेंडिचर है, ऑल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. तो यहाँ मैं कर देता हूँ उसको डेबिट साइड. और जितना भी आपका इनकम है, सब्सक्रिप्शन है, एडमिशन फीस है, whatever we are earning, commission received, miscellaneous received, interest received, तो जो भी आपका अर्निंग है, so ये क्रेडिट चला जाएगा क्रेडिट साइड. So it will be considered as an income, and debit side will be recorded all expenses. जो नॉमिनल का सिंपल वो रूल आपको फॉलो अप करना है. उसके बाद इसके फीचर्स बताए गए हमको. 2.3.2 में फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So very first thing, that it is a nominal account, that we know. Second thing, this account record only the revenue, expenses and income of the current year only. We know that whenever we prepare a financial statement, we prepare for a specific period of 1 year. तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होगा रेवेन्यू नेचर का, वो 1 साल के लिए होगा. आपका करंट ईयर, मान लीजिए कि करंट ईयर चल रहा है 21, 22, 21 and 22. So for that, whatever we are receiving, income or expenses will be recorded in this account. Thirdly, it is more similar to the profit and loss account. In the previous chapter, we study about the profit and loss account, trading account, profit and loss account. वहाँ आपका प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट या लॉस आता था. तो यहाँ पर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डिफिसिट आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया आपको. इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द सरप्लस और डिफिसिट. तो सरप्लस के लिए एक वर्ड है, हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं यहाँ पे से. सरप्लस के लिए क्या वर्ड है? कब होगा सरप्लस? सरप्लस रहेगा आपका व्हेन इनकम इज मोर
देन एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा आपका सरप्लस। तो इनकम क्या है आपकी, मोर है, ज्यादा है। व्हेन इनकम इज एक्सेस या मोर देन एक्सपेंसेस सरप्लस, और इसका वाइस वर्सा डिफिसिट होता है व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो यहाँ डिफिसिट हो जाएगा। तो चौथी बात जो बताई गई है, तो इसमें डिफिसिट आएगा आपको या आपको सरप्लस आएगा। सरप्लस कब आएगा, जब आपका ने पैसा सोर्सेस ऑफ इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है इनकम साइड की, तो आपको सरप्लस मिलेगा। तो सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा, इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट, income and expenditure account is always accompanied with balance sheet. When we prepare statement for the not for profit concern, we have a question in receipt and payment form, and we have to prepare this income and expenditure account and which is accompanied by the balance sheet. तो आपको इसके साथ balance sheet भी बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। It has no opening balance, तो income and expenditure में opening balance नहीं रहेगा। इसका रिजल्ट या तो सरप्लस या तो डिफिसिट रहेगा, जो बाद में कैपिटल फंड में चला जाएगा। अगर सरप्लस है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, सरप्लस विल बी एडेड इन कैपिटल फंड। अगर डिफिसिट आया तो आपका जो एग्जिस्टिंग ओल्ड कैपिटल फंड होता है उसमें से माइनस हो जाएगा। लास्ट थिंग, it record all cash item as well as non-cash item which are related for the current period, for example salary, outstanding salary, bad debt, depreciation on fixed asset। तो ये भी इसमें आ जाता है, चाहे वो कैश हो या नॉन कैश आइटम हो, जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह है, बैड डेट्स है, तो कैश से रिलेटेड नहीं है बट इट्स लॉस और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। डिप्रिसिएशन है, रिडक्शन इन द फिक्स एसेट, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इसके बाद है हमारा पॉइंट, ये स्पेसिमेन है, इसका पॉइंट दिया हुआ है 2.3.3। so let us understand what we have to record on income and expenditure account. Debit side and credit side. Debit side will be recorded all expenses। देखिए लिखा ऐसा जाता है, see on the screen, income and expenditure account। इनकम पहले लिखा जाएगा, लेकिन इनकम हमारा क्रेडिट ग्रुप है तो क्रेडिट में चला जाएगा, और एक्सपेंसेस डेबिट में है तो ये आपका डेबिट में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड। समटाइम्स स्टूडेंट में गेट कंफ्यूज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है लेकिन लिखा उसको डेबिट को एक्सपेंसेस में लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है। अब just you think that imagine what the expenses can be happen in the not for profit concern। जैसे यहाँ लिखा है सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, जनरल एक्सपेंस हो सकते हैं, रिफ्रेशमेंट चार्जेस हो सकते हैं, टूर्नामेंट चार्जेस हो सकते हैं। so all the expenditure will be recorded here, so one by one we will see here to salaries paid for last year, paid for last year, paid for next year, तो ये लेस करेंगे। देखिए हम करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें पास्ट और प्रीवियस का दोनों होता है। तो अगर पास्ट का सैलरी हम अभी पे कर रहे हैं तो हम उसको लेस कर लेंगे, यहाँ लेस शो किया गया है। जब प्रैक्टिस करेंगे so it will be more clear to you that why we have to less this, because it is not a current year expenditure, the expenditure which was due for the previous year, now we are paying that। अंडरस्टूड। तो लास्ट ईयर का था, एज एन एग्जांपल एक एम्प्लॉय था जिसने लास्ट ईयर हमारे पास काम किया, तो हमने उसको 10 ही महीने का सैलरी पे किया, 2 महीने का बाकी है। अब हम पे कर रहे हैं लास्ट ईयर के लिए, तो यहां से लेस कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए करंट ईयर एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंसेस ऑफ द पास्ट ईयर, तो इसीलिए ये लेस किया गया है। कोई एम्प्लॉय है करंट ईयर काम कर रहा है, 11 मंथ्स काम किया है, 1 महीने का सैलरी बाकी है, तो उसको ऐड किया जाता है। करंट ईयर एक्सपेंसेस विल बी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जिसका हमने सर्विस बेनिफिट तो ले लिया, पेमेंट करना बाकी है, तो यहाँ लेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि पास्ट ईयर के लिए था, यहाँ ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट ईयर का हमको देना है। एज एन एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने आपके पास 11 महीने काम किया, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है और उसका मार्च का सैलरी आपका पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो आपको देना है तो आउटस्टैंडिंग है, उसको एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे फॉर द करंट ईयर। ऐड प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आपने पे किया था, तो लास्ट ईयर का नहीं था एक्सपेंसेस, इस तरह से लेस किया हुआ था वहां पर, तो अब जाके वो ऐड हो जाएगा आपका।
because it is a current year expenditure which you already make payment in the previous year, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनल आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी रिवाइज हियर वंस अगेन, क्योंकि आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता है। तो जो भी एक्सपेंसेस है, कन्वेंस है, रेट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑडिट फीस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस है, टू मेडिसिन एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, जितने भी कंज्यूमेबल होते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और रियल नेचर के तो बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। ठीक है, सो वी हैव मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन आएगा तब देखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका ये प्रोसेस है वो देख लेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं अगर कोई स्टॉक बच जाता है तो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। अब अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, मान लीजिए कि इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका ये जो क्रेडिट साइड लिखा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ का टोटल आ रहा है 1,50,000, और डेबिट साइड के एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1,20,000, जो 30,000 30,000 बच जा रहे हैं, उसको लिखा जाएगा टू सरप्लस। व्हाट वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू रिकॉर्ड एज सरप्लस 30,000। नाउ द बोथ साइड, दिस 150 and this will be 150. The credit side is more, so it will be recorded surplus. If suppose debit side is more, so difference will be appear here opposite side, credit side, और deficit बोल के आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है कि by deficit, ये केस में डेबिट ज्यादा रहता है। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो जैसे कि इनकम साइड है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का एक ट्रीटमेंट है, सब्सक्रिप्शन में आपको करंट ईयर कितना है वो लिखना है, अगर कुछ बाकी है तो ऐड करना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का इस साल मिल रहा है तो उसको लेस करेंगे, लास्ट ईयर का इस साल मिल रहा है तो लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है इस साल तो भी लेस करेंगे। रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल का तो नहीं है, लास्ट ईयर के लिए कोई दे रहा है। एज एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, इसको हम सब्सक्रिप्शन को यहाँ समझ लेते, कहाँ पर, इसको जाकर समझते यहाँ पर, इसको मैं स्क्रीन थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन, insert two columns, देखिए इसको समझने के लिए एज एन एग्जाम्पल, हमारे पास स्टूडेंट होते हैं या एम्प्लॉइज पकड़ लीजिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल आपके आसानी समझ में आएंगी। 100 स्टूडेंट्स है और वो 1,000 रुपीज फी पे करते हैं, फी पे। तो करंट ईयर के लिए अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है और 1,000 पे कर रहे हैं तो इट शुड बी 1 लाख, सब्सक्रिप्शन अमाउंट शुड बी 1 लाख। तो अगर करंट ईयर में किसी ने नहीं दिया, तो यहाँ मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट ने नहीं किया, 99 ने पे किया, तो आपके पास 99,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन कितना आया हमारे पास 99,000, बिकॉज वन स्टूडेंट डिडंट पे बट इज इनकम ऑफ द करंट ईयर, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक ने नहीं दिया, ये 1,000। अब हो ये सकता है कि इसी तरह से 2 साल पहले किसी ने नहीं दिया था, इस साल आपको एडजस्टमेंट में दे रहा है, तो वो जो आ रही है कौन से साल की है, 2 years बैक की है, लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ऑब्लिक पास्ट ईयर, पास्ट ईयर, ठीक है, लेस, क्योंकि इस साल का ही नहीं है। मान लीजिए कि दो साल पहले के स्टूडेंट थे नहीं दिए थे तो अब दे रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ तक का हम टोटल ले लेंगे, ये हो गया पूरा करंट ईयर का बराबर। अब यहाँ से 2,000 रुपए आ रहे हैं तो ये 2,000 रुपए लेस कर लेंगे, जो करंट ईयर में हमको रिसीव है पर पास्ट ईयर, इस तरह से लेस होता है। उसी तरह लेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर,
अब क्या हो रहा है कि कोई क्या कर रहा है, आने वाले साल का पे कर रहा है, इसी में से कोई है, मान लीजिए कि एम्प्लॉय, ये एग्जैक्ट नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट 11 के साथ साथ 12 का भी पे कर दे रहा है तो हमारा यहाँ का 1,000 रुपये और बढ़ जाएगा। उन्हें 11 12 एक साथ पे कर दिया तो इस तरह तो होना चाहिए था 1 लाख, लेकिन किसी एक ने एडिशनल नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे कर दिया, पे फॉर नेक्स्ट ईयर, वो भी लेस हो जाता है 1000 अगर इसमें इंक्लूड है तो। ठीक है, तो ये लेस वाले फॉर द पास्ट ईयर और लेस पेड फॉर द प्रीवियस ईयर एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ये आपको सब्सक्रिप्शन में याद रखना है व्हेनेवर। और आपको ये एक बार समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन, सो इट इज मोर इजी फॉर यू टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। ये 12 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, चलिए सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं रेंट रिसीव्ड। अब इसके अलावा आपके पास जो भी रिसीव हो रहा है, आई विल मेक इट लार्ज सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन very easily. Credit side where I'm reading by rent received, by interest received, by dividend received, by government grant, जर्नल है तो आएगा, स्पेसिफिक का हमने देखा था फॉर्मेट में, वो चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। जर्नल है तो यहाँ आ जाएगा। ग्राउंड रेंट, हमारा ग्राउंड था, हमने रेंट पे दिया, उसका रेंट आया है। सन्ड्री रिसीट मिसलिनियस कुछ आ रहे हैं, छुटपुट आपके पास रिसीट आ रहे हैं, वो आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीट रेवेन्यू नेचर की यहाँ आएंगी। कैपिटल नेचर कहा गया तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये एक पॉइंट आता है, इसको हम समझ लेते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट क्रेडिट साइड आता है, क्यों आता है? एज एन एग्जांपल यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। मान लीजिए कि आपका एक फर्नीचर है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 50,000, इस पे 10% आपने पहले साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 10% डिप्रिसिएशन, वी स्टडीड इट इन द चैप्टर 11th स्टैंडर्ड, 10% डिप्रिसिएशन। तो एट द एंड ऑफ ईयर 50,000 प्लस 10%, 5,000 माइनस हो जाएगा, 50,000 माइनस 5,000 डिप्रिसिएशन, आपके पास इसकी फिगर हो जाना चाहिए 45,000 बैलेंस शीट में। अब इसको सेल कर रहे हैं, अब इसको सेल कर रहे हैं, सेल सोल्ड करेंगे, सोल्ड एट रुपीज 48,000। अब ये जो 48 पे सेल किया तो ये 3,000 जो आ रहा आपको, ये है आपका प्रॉफिट। सो दिस प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड व्हाइल वी सेलिंग एनी एसेट। एग्जांपल, फर्नीचर है आपके पास, कॉस्टिंग 50,000, जो डिप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया 10%, तो माइनस करने के बाद आपके पास की उसकी बुक वैल्यू, ये क्या है? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कब? एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एंड यू हैव सोल्ड आउट एट 48,000, तो आपको 3,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह से वाइस वर्सा, अगर ये सेलिंग प्राइस हो जाती है यहाँ पर 40,000, ठीक है, इसका हो गया, अब यहाँ पर सोल्ड एट, प्रॉफिट आ गया 3,000 का, अब नीचे ले लेता हूँ उसको मैं। इफ यू सोल्ड एट 40,000, अब यहाँ पर उसको बेच रहे हैं आप, जबकि कॉस्ट होना चाहिए बुक वैल्यू 45 के हिसाब से, उसको 45 में सेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है, ये होगा आपका लॉस। लॉस को रखता हूँ मैं रेड कलर में और इसको कर देता हूँ ग्रीन, प्रॉफिट। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। और ये जो लॉस है, ये लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपोजिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड चला जाएगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंसेस साइड पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ मैं ई को हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ आई को हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, अंडरस्टूड। कमिंग हियर डिफिसिट, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको क्या रहेगा, यहाँ पर डिफिसिट आएगा, ये आपका एक हिसाब से लॉस है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं कहा जाता, वर्ड डिफिसिट ही आपको यूज करना है। डिफिसिट यानी कि कम पड़ गया, 1,20,000 रुपए का आपका एक्सपेंसेस हुआ और आपका ने जो आया वो 1,10,000 है, तो 10,000 रुपए आपका यहाँ पर आप लिखोगे डिफिसिट बोलकर, तो ये आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। The format is given on comment textbook page number 670. Go through it. फिर इसके बाद दोनों में डिफरेंस बताया गया है, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो हम डिफरेंस के
एक ब्रीफली देख लेते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट। दोनों में फर्क क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला फर्क है कि ये रियल है, रियल अकाउंट के रूल पता है हमको, इसमें एसेट वगैरह भी होता है, और ये नॉमिनल सिर्फ रेवेन्यू नेचर का यहाँ आएगा। ये कैश बुक की तरह है और ये नॉमिनल है, तो फिर जो भी आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस वो आएगा यहाँ पर। तो ये सिमिलर ऑफ कैश बुक, इट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ समरी ट्रांजैक्शन। It is prepared to ascertain the net result of all income and expenditure account। यहाँ पर समरी रिंग मतलब सभी चीजें आ जाएंगे, दोनों नेचर की चीजें आ जाएंगी, रेवेन्यू कैपिटल की, लेकिन यहाँ नेट रिजल्ट के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताया जाता है। ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बैलेंसेस नहीं होते। जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर का बैलेंस होता है, फिर उसमें कुछ ऐड होता है, फिर लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हम उसी को कंसिडर करते हैं रिसीट एंड पेमेंट के, ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करते। इन द प्रीवियस सेक्शन we have seen that closing balance of represent cash in bank, यहाँ पर कैश और बैंक बोल के बैलेंस आता है, यहाँ पर डिफिसिट या सरप्लस, जस्ट रिसेंटली वी हैव सीन। receipt and payment account, all receipt and payment during the current year are recorded in this account। रेवेन्यू हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, it will be recorded in receipt and payment account, but here in case of income and expenditure account only revenue receipt and revenue payment will be recorded। In receipt and payment account, no non-cash transaction are not recorded, whereas in this case of income and expenditure account, we have a bad debts, outstanding expenses, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स प्रिपरेशन की बात करें तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ तीनों नेचर के अकाउंटिंग के हमारे तीन पिलर है, मेन प्रिंसिपल्स है, हेड से रियल, पर्सनल और PRN। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों आते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल नेचर के आते हैं। इट इंक्लूड द previous year as well as next year, but in income expenditure account we have to consider only the current year। करंट ईयर का क्यों? क्योंकि आपको पता करना है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं सर्वाइव करने के लिए, जो आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस एंड करंट ईयर इनकम, बट इन केस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इट इंक्लूड नेक्स्ट ईयर, पास्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट की अगर बात करें, इट नीड नॉट बी नेसेसरी टू अकम्प्लिश अ बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा तो अकम्पनीड होता है, इसके साथ अटैच होता है इनकम एक्सपेंडिचर के आपका बैलेंस शीट। सो हियर आफ्टर वी हैव हाउ टू प्रिपेयर income and expenditure account। from next session, in the next session we are going to solve problem on the not for profit concern। okay, thank you।